So our speaker Neha Hafiz is here in the session now. So she's a gold MLSA and she'll be now starting the session on anomaly detection using Azure services. So I'll be passing it on to her to so that she can share her screen and start the session. Hope you all have fun and learn a lot. And feel free to ask questions in the chat or by opening up your mic and asking them as well. And she'll also have a Q&A at the end where she will be answering all the questions as well. Hello everyone. Thank you, Aryan, for introducing me. Is my screen visible? Yes, your screen is visible. Okay. So, should we wait for the participants to join or should I start? I think you can start with your basic introduction. Till then, they will start joining as well. Okay. So, just give me a second. Okay. So, hello everyone. Welcome to Global Azure Bootcamp 2023, which is organized by MLSATTU. And today I'm gonna talk about anomaly detection using Azure services. So about me, I am Neha Hafiz, Gold and Regional Lead, Microsoft Learn Student Ambassador, and Regional Lead of EMEA region as well. Apart from that, I have been working with Neuron Solutions as a data analyst, and I have been leading community in Pakistan named MLS Women Tech Hub, and I'm also volunteering for as a general secretary for MLS Islamabad, and I have been doing the certifications for. I have done a lot of certifications related to the data analytics field and Azure, etc. But the most impactful one was by NAPTEC. It was big data analytics and techniques. Apart from that, I am also in software engineering. So that was all about me. And if I'm gonna start like starting with the a little history of data science. Okay, so because the approach we're gonna follow towards anomaly detection is obviously we have to understand what is data, how it was originated, why are we doing the analysis on data, and what is our basic approaches and why like the whole purpose is why are we actually doing this stuff. Okay, so if you guys have any question, we have a Q&A session at the end of the session, and I am also giving away a LinkedIn premium voucher to one of our active attendees, so be ready to get that as well. So I'm gonna start it from like in 2001, William Clement wanted to bring data science to another level. So combining the field of data science and computer science, or I can say statistics as well, he basically made the statistics analysis more technical, which he believed would expand the possibilities of data mining and produce a powerful force of innovation. If I talk about uh, Web 2.0, when it was emerged, where websites were mostly used as a pamphlet. Therefore, like as the technology was evolving, the whole approach totally shifted, and we were shifting. The websites were shifting from can see just a pamphlet towards a platform where anyone can interact with each other, where everyone was leaving their step foots behind. And I think I would like to see who we have in our audience.
Yeah. Okay. So mostly from India and Pakistan, right? Right, Aryan? Yeah, mostly from that. Okay. And I think the audience It's can also let you know in the chat as well. yeah. I really want to know about that. You know, because It would be every great time if you you can message in the chat that from where you are joining. yeah, sure. Where are you guys joining from? Because you know, while starting or giving a session, you must know about your audience. We have from Pakistan, Pakistan, and India. Do we have someone like outside from our domain or boundaries? Okay. Okay, so that's great. It means that I can follow the I can speak in Hindi, Urdu, or English. I can like go a mixture of it, and you guys are gonna understand, right? Okay, great. Because I really want to deliver the concept. Basically, I really want कि आप लोग understand कर सको. ये मेरी approach होनी चाहिए हर चीज. So basically, what actually happened कि हम एक तरीके से जिस तरह से डे बाय डे इवॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से जैसी वेब 3.0 आया है ठीक है एंड हमारी जो वेबसाइट्स है दे आर बेसिकली शिफ्टिंग टूवर्ड्स टू वे कम्युनिकेशन जिसमें वी कैन इंटरेक्ट विद like all over the world we can interact with anyone we are leaving our footsteps behind हम हर जगह अपने निशान छोड़ते जा रहे हैं हम हर जगह अपना डेटा छोड़ते जा रहे हैं like it makes no sense if I'm gonna say कि my data is private and I'm just keeping it safe and it's not gonna be like that we are always leaving an impact anywhere where we are like interacting with people. For instance, if I say about Instagram, like we are sharing, subscribing, commenting, we are giving our reviews. अब अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा अगर आप सिर्फ लोगों को काउंट करना शुरू कर दें तो यू कैन फील लाइक कि हमारी तो इतनी माशाल्लाह से हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो जस्ट इमेजिन कि एक बंदे का उससे डबल उसका डाटा है ठीक है सो इस सारे डाटा को मैनेज करना वॉज बिकमिंग हेल हेक्टिक ठीक है सो Neha, I think you got disconnected. Your voice is no longer audible. I think she has a network issue. So let's wait for a few minutes and see.
Yeah, she is joining again so that it was a network issue. This was getting corrected. So let's wait for 1 or 2 more minutes. Hello. Yeah, you are now audible. Okay. As some of you guys may know, okay, यहाँ पे there's a lot of chaos out here because of some political issues, and we are having some internet connection problems. Okay, so my screen visible to all of you guys? Yes, your screen is now perfectly visible. Okay. So I will try to cover each and everything as soon as possible. इससे पहले कि मेरा internet फिर से चला जाए. So I'm gonna talk about the problem which is actually arising. Why we shift to like अच्छा आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई कि हम बेसिकली डाटा के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं और हम क्यों डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है? Because sometimes it doesn't make sense कि यार अच्छा ठीक है do all these things, okay? तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि wait, okay. So I want to know from you guys कि sometimes you have uh, You are like sharing your एक WhatsApp screen actually. प्रॉब्लम कि आपको कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ कभी ना कोई राइड्स हो रहा हो तो ओके एक्सेप्टेड हेलो Yeah, your network is still getting a bit disconnected, and you are sharing your WhatsApp screen, not the presentation right now.
Okay, so let's give her a few minutes. I'll be sharing my screen, so she'll be sending the presentation. She's having some network issues. Right, and she's setting her up, set like the presentation. So you can have a look at Azure for Students. So in case you don't have an Azure account and you want to follow along with this event and the rest of them as well, which will be happening today, you can create your Azure account for free with your university email ID, and you will also get free $100 credits with that. So you can sign up for it. You don't need to use any credit card or anything like that, and it's completely free. So make sure to register for it in the meantime. This will also help you in the next sessions, which will be happening today, so that you will be able to try the things at the same time in the while they will be given the demo and the presentation as well, and you'll be able to have more hands-on learning in that case. So if you want to join, you can just click on the start free button, and after that there will be some forms, and you have to just create your account, and after that you will basically get signed in, and you need to verify with your student ID card and email ID. So you will then get a email, and once you basically verify that it's your email ID, you will be getting the $100 of credit and free as your account as well, which you can use to host your website. You can do the various things like anomaly detection and other things that we will be discussing today as well.
Yes, Asif, you'll be getting, like, basically it will be for the quiz winners and also some participants who are active in the sessions. So we will pick some active participants, and for the quiz winners, we'll be having LinkedIn Premium vouchers and also uh, Amazon gift cards as well. So the quizzes will be happening at 4 p.m. and 5:30 p.m. And you have to be like if you're active in all the sessions, so you'll be getting like the one who's like people who are the most active will be getting LinkedIn Premium vouchers. So, Mohammed, if you don't have an university email, then the other way is that you will have to basically submit your like your university ID, like basically like ID card or something like that, or a transcript, or like your mark sheet or something like that, which is like a proof that you are a student, because like the software is for students only. So if you have any of that, you can submit it, but that will take a while to get accepted. It can take about a week or so. So you can apply for it, and they will then review the like details and then give you the access. And those who have the email IDs will get like instant access. So like that's the advantage of email IDs. But in case you don't have it, then you can like click a photo of your college ID or your mark sheet, transcript, maybe your even your like you get your like admission cards and all that, so you can submit that as well. Okay, Tanvir. So basically, like Azure is like basically a tool that you can use for. Okay, Neha is here. So give me a minute now. 1 second. I'll do that. Okay. Um, yeah. So I've made you the presenter again. Okay, give me a minute. Okay, so you've shared a screen yourself now. Uh, could you try unmuting once if it's audible again or not? In case it is not, then I can share the screen for you. No. Am I audible? Yes, you are now perfectly audible. Okay.
You know, like this thing is permanent. मतलब कुछ भी change हो सकता है. ये network problems कभी solve नहीं हो सकते. And I Yeah. think that I shared the wrong slides. Very good. Ayan, I just shared the slides with you. Can you Uh-huh. check them out? Yeah. Yeah, I think that those are right. So I'll just share them. Give Yeah, me a minute. please. Yeah, let me know once they are visible. Okay. Yeah. I'm so sorry, guys, for the inconvenience. Okay, so Ayan, I'm taking the control. Yeah. So are you able to take the control now? Yeah. Yeah. Okay. Perfect. So now you can continue now. It seems Yeah, perfect. finally. Okay. So basically मैं बात कर रही थी कि हम एक सिनेरियो ले लेते हैं. अब I'm gonna walk through over the anomaly कि हम anomaly की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है. हम एक सिनेरियो ले लेते हैं जस्ट फॉर इंस्टेंस कि हम एक फ्रेंड्स की ग्रुप डेली लाइफ की बात करते हैं. वी आर सिटिंग इन अ ग्रुप, ठीक है, और नॉर्मली डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन सडनली यू फील लाइक कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिस्कशंस जो हैं वो लड़ाइयों की तरफ जा रही है, ठीक है. तो the main person will actually try to identify कि प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रही है, कौन सा ऐसा बंदा है जो प्रॉब्लम की रीजन बन रहा है, कौन सा ऐसा बंदा है जो प्रॉब्लम की सोर्स बन रहा है, राइट. किसको कौन कौन अपने ग्रुप में मेन लीड्स हैं, हैंड रेज करके आप मुझे बताओ. अपने अपने ग्रुप्स में मेन लीड्स होते हैं ना, जिस तरह से दे आर लीडिंग द ग्रुप. Like I am leading a lot of communities, so I know that there is a lot of issues जिसमें आपको बहुत सारे issues को ऐसे identify करना पड़ता है. Yeah, so basically those people who are the problem creators are actually the outliers of our group. मतलब they are disturbing the pattern. हम जो एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं वो पैटर्न पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है. वो कौन डिस्टर्ब कर रहा है? वो बंदा डिस्टर्ब करो. वो बंदा क्या है? वो पूरा हमारे डाटा के अंदर एक आउटलायर है, ठीक है. सो उस आउटलायर को डिटेक्ट करना इज अवर मेन प्रॉब्लम, ठीक है. एंड दैट आउटलायर इज कॉजिंग एन एनॉमली. अब इफ आई टॉक अबाउट अ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ डैशबोर्ड्स वी आर यूजिंग, राइट. आप लोगों ने देखा होगा कि डैशबोर्ड्स होते हैं, डैशबोर्ड्स के ऊपर आपका सारा एनालिटिक्स हो रहा होता है, आपका बिजनेस पूरा वहाँ पे बिजनेस मॉडल बना हुआ होता है जिसमें आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे हमें लॉस हो रहा है. एक पूरा पैटर्न बन रहा होता है. आप उन पैटर्न्स को फॉलो करते हो, और अगर आपका वो पैटर्न कभी डिस्टर्ब हो जाए ना, तो आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है हमारी कंपनी की, किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमारा पूरा पैटर्न जो एक तरीके से राइज की तरफ जा रहा था या एक बैलेंस में चल रहा था, या तो वो बिल्कुल फॉल होना स्टार्ट हो गया, या कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत हो रही हैं, जो डिफरेंट हो रही हैं. तो दिस इज एनॉमली. वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट द एनॉमली, ठीक है. तो अब एनॉमली तो डिटेक्ट होगी, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ जाता है स्केलेबिलिटी का. अब डैशबोर्ड्स, जब डैशबोर्ड हैं तो फिर हमें एनॉमली डिटेक्टर अलग से क्यों चाहिए? बात सोचने वाली है ना कि जब हमें डैशबोर्ड के थ्रू पता चल रहा है, तो डैशबोर्ड्स के थ्रू हमें इतनी इजीली नहीं पता चला. अभी मैं जितना आसानी से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि हाँ ऐसे आपको पता चल जाएगा, ऐसे यूजुअली होता नहीं, ठीक है. सेम लाइक अक्सर हम स्टैटिक थ्रेशोल्ड्स बना लेते हैं. स्टैटिक थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं कि हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं. हम फिक्स कर लेते हैं कि अगर हमारी वैल्यू 2 से ऊपर जाएगी तो इट मीन्स दैट इट्स एन एनॉमली, ठीक है. अब 2 से ऊपर वो बेशक 0.01 ऊपर 0.1% भी ऊपर जाएगी ना, तो हम उसे एनॉमली डिटेक्ट कर लेंगे. लेकिन अगर हम उसको इस तरह से डिटेक्ट करेंगे तो आई थिंक कि प्रॉब्लम स्केलेबल नहीं रहा ना हमारा, कि 0.001% से क्या फर्क पड़ता है, बल्कि वो तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एनालिसिस के लिए, जिसको हम मिस करें जस्ट बिकॉज हमने हर चीज स्टैटिक कर दी है.
इसी तरह टूलिंग्स भी समटाइम्स सिर्फ टूल्स की हेल्प से भी चीज मैट्रिसेस को एनालाइज करना आसान नहीं होता। इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एनोमली डिटेक्शन इंट्रोड्यूस करवाएगी। ठीक है, लेट्स मूव टू व्हाट इज एनोमली डिटेक्शन। इसके बारे में हमने बात कर ली है। So basically it's a process of finding unusual pattern in a data set and it is also referred to as an outlier, और ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। Then let's come forward। अब आप लोग देखो, अब मुझे बताओ कि इस ग्राफ में एनॉमली आप लोगों को क्या शो हो रही है? What is unusual? कौन सा पैटर्न डिस्टर्ब है और कितनी एनॉमलीज शो हो रही हैं? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 आप लोग मुझे लिख के बताओ आपको इस ग्राफ में कितनी एनॉमलीज शो हो रही है अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है उसके अकॉर्डिंगली। आर वी गेटिंग रिस्पॉन्सेज? आई एम वेटिंग। इसको चेक करो और मुझे बताओ कितनी एनॉमलीज हैं। ओके, द फोर्थ लास्ट लाइन लुक्स लाइक एन आउटलायर। ओके, और पैटर्न, अच्छा मुझे 1 2 की फॉर्म में बताओ। अच्छा, किसी ने 16 कहा है, किसी ने 11 कहा है। The repeated one are pattern. Okay. अच्छा, try to understand the concept, guys. मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज अनयूजुअल है, जो आउटलायर को डिटेक्ट करिए। आउटलायर क्या है? एक हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उस पैटर्न के अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो पैटर्न को डिस्टर्ब कर रही है, कोई एक ऐसा डेटा का एलिमेंट है जो पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है। अब गौर से देखो ग्राफ को और मुझे बताओ कि इसके अंदर कितनी एनॉमलीज डिटेक्ट हो रही हैं। Yes, Hipsa, yes. Or now you got the point. Yes, there are basically two anomalies, this one and this one. लेकिन एक्चुअल में जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम विच वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है तो हम कहेंगे भाई ये एनॉमली है। we are not gonna go like this. It always depends on the type of the problem. अब मैं प्रॉब्लम मेरी कोई और चीज, प्रॉब्लम मेरी डिटेक्ट कर रही हो कि अच्छा मैंने चेक करना है कि CGPA स्टूडेंट्स का कितना जा रहा है और कितना नहीं, और नॉर्मली के अंदर मैं डिटेक्ट कर रही हूँ कि अच्छा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ये वाला मार्क्स में ये फलां स्टूडेंट्स, ये वाला एक अनोमली बन रहा है, ये एक आउटलायर बन रहा है। दिस मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में रखना कि जब भी हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे होंगे, हमें हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करना है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। हमने ओवरऑल पूरे डैशबोर्ड को नहीं देखना शुरू कर देना। अब एनॉमली या कोई भी चीज अगर हम एनालाइज करें तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम ऐसे देख के बता सकते हैं क्योंकि वो यार प्रोफेशनल्स, वो यू कैन जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड वी कैन टेल कि हाँ ये एनॉमली डिटेक्ट हो रही है। या फिर हम स्टैटिक थ्रेशोल्ड सेट कर देंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम कह देंगे कि चलो अगर हमारी वैल्यू 10 से ज्यादा इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है ये नॉर्मली है। अब बेशक वो 0.00001% इंक्रीज करी हो या 0.0000001% इंक्रीज करी हो या 0.0001 तरह से भी इंक्रीज करेगी तो वह नॉर्मली है, और वो डिटेक्ट कर देगा और वो कहेगा कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से हमारा पैटर्न ना खराब हुआ है। ठीक है, या फिर हम मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज कर सकते हैं या हम स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मशीन लर्निंग मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल, अब मुझे यहाँ पे बताएं कि किस किस को मशीन लर्निंग के बारे में पता है। हैंड रेज करो सारे। ओके, नाइस। सो ओके, ग्रेट। तो हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी ताकि अगर किसी को नहीं भी पता, किसी को नहीं भी आइडिया कि मशीन लर्निंग क्या है, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मशीन लर्निंग इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो मशीन लर्निंग में हम बेसिकली ना डाटा लेते हैं और हम कुछ ना कुछ उस डाटा के थ्रू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं।
हम उस डेटा के ऊपर कोई ना कोई मॉडल अप्लाई करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें से अपने मतलब की चीज़ें निकालते हैं और कुछ ना कोई ना कोई रिजल्ट हम एट दी एंड प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे मेजर एग्जांपल दूंगी, जैसे इंस्टाग्राम की रील्स चेक कर लो, आप एक रील लाइक करोगे, आपको उसी से रिलेटेड 10 और रील्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट, जैसे फॉर इंस्टेंस आई जस्ट परचेज्ड अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, अब मुझे उसी से रिलेटेड 10 और एड्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज मशीन लर्निंग, ठीक है। तो लेट्स कम बैक। अब हम करते क्या है कि हम एक डाटा उठाते हैं, उस डाटा को हम कहते हैं ट्रेनिंग डाटा, उसके ऊपर मॉडल अप्लाई करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है। फिर हम एक टेस्ट डाटा उठाते हैं और जो मॉडल हमने ट्रेन किया होता है वही मॉडल हम सेम अप्लाई करते हैं टेस्ट डाटा के ऊपर, और फिर हम टेस्ट डाटा को और ट्रेन डाटा को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर तो उनके रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं, इसका मतलब वी आर गुड टू गो। लेकिन अगर उनके रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम। या तो जो ट्रेनिंग डेटा है, जो टेस्टिंग डेटा है, उसके अंदर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एक ही डेटा सेट होता है, एक ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि भाई अच्छा ठीक है, टेस्टिंग डेटा कोई और भी तो हो सकते हैं, टेस्टिंग डेटा कोई और नहीं होता, ठीक है। हमारे सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेम कॉलम होते हैं, नहीं एट्रीब्यूट्स चेंज हो सकते हैं, कॉलम सेम होते हैं, ठीक है। और हम अपने एक डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक को हम ऐड कर देते हैं ट्रेनिंग के अंदर और दूसरे को हम ऐड कर देते हैं टेस्टिंग के अंदर। तो इट इज काइंड ऑफ कंपल्सरी, या मतलब इट मेक सेंस कि मतलब हमारा डेटा का रिजल्ट जो है ना वो आपस में सिमिलर आने चाहिए, एक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। अगर पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा तो फिर हमारी एनालिसिस के अंदर प्रॉब्लम है। अगर हमारी एनालिसिस के अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि कोई आउटलायर है विच इज मेकिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्टैटिस्टिकल वे में बात करूं तो जस्ट इमेजिन अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, ठीक है। अब मैंने कोई एक डाटा उठा लिया, ठीक है, और उसके ऊपर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करी। अब मीन के अंदर क्या होता है कि वी हैव अ कर्वी लाइंस, ठीक है। हमारे पास एक कर्व शेप में नॉर्मलाइजेशन हो रही होती है डेटा की, ठीक है। और अगर हमारी वो नॉर्मलाइजेशन सही ही जा रही होगी तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। अब अगर हमारी नॉर्मलाइजेशन में कोई मसला आ रहा होगा तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी के हिसाब से चेंज होता चला जाएगा, ठीक है, और इंक्रीज करता चला जाएगा या डिक्रीज करता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपना करंट डेटा को चेक करते हैं कि अगर तो हमारा डेटा, अच्छा अब स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के अंदर हम थ्रेशोल्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं हो रही होती चीज़ें, मशीन लर्निंग के अंदर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रही होती है। स्टैटिस्टिकल मॉडल के अंदर हम थ्रेशोल्ड लगाते हैं, हम उसको एक वैल्यू देते हैं, एक ट्रेनिंग डाटा होता है हमारा जिसके ऊपर हम पहले से अप्लाई कर लेते हैं। जब टेस्ट करते हैं तो हम उसको चेक करते हैं कि अच्छा अब अगर तो ये वाला डाटा इससे कम हुआ तो फिर हमारी एनॉमली डिटेक्ट हो जाएगी कि मतलब कोई ना कोई मसला है। लेकिन अगर वो उसके इक्वल जा रहा होगा तो इट मीन्स के वी आर गुड टू गो, हम आगे वाले स्टेप्स पे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब एनॉमली डिटेक्शन क्यों यूज होती है? एनॉमली डिटेक्शन हम यूज कर सकते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, डाटा क्लीनिंग के लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि वेदर फोरकास्टिंग हो रही होती है, अब कुछ डिफरेंट होता है और उसके अंदर वो हमें बताते हैं कि अच्छा अभी 3 से 4 दिन हमारा वेदर का पैटर्न एक ही रहेगा, 4th डे एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो, लेकिन बारिश से पहले क्लाउडी मौसम भी हो सकता है, यू नो दीज ऑल स्टफ इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स, ठीक है, वहां से डिटेक्ट होता है और जिसके अंदर एनॉमली डिटेक्शन यूज हो रही होती है। अब माइक्रोसॉफ्ट, अगर हम बात करें ना कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बारे में या कोई इस तरह की चीज़ें, तो माइक्रोसॉफ्ट इज ऑलवेज देयर टू एंटरटेन यू, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट में की जो सर्विसेज हैं एज़्योर की, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो उसके फीचर्स हैं वो बहुत मज़ेदार हैं, ठीक है।
आपको वो स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लिटरली आप कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हो किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, और क्लाउड पे आप बहुत इजीली डिप्लॉयमेंट कर सकते हो अपनी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज यूज़ करके, ठीक है। और सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि आप एक एज्योर सर्विस को दूसरे एज्योर सर्विस के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं डेटा फैक्ट्री को यूज़ कर रही हूँ तो मैं डेटा फैक्ट्री को डेटा एज्योर डेटाब्रिक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकती हूँ। अगर मैं एनोमली डिटेक्टर की बात करूँ तो उसको मैं कॉग्निटिव सर्विसेज और मशीन लर्निंग के साथ इंटीग्रेट कर सकती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हम रियल टाइम डाटा के ऊपर बात कर रहे होते हैं। हम रियल टाइम डाटा गेट भी कर सकते हैं, हम रियल टाइम डाटा फेच भी कर सकते हैं, ठीक है। सो एज्योर की सर्विसेज बहुत मज़ेदार है, इसमें हमें बहुत ही सीखने को मिलती है। उसके अलावा आ जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ हो रही है एनोमली डिटेक्शन के लिए। तो उसमें हमारे पास कॉग्निटिव सर्विसेज यूज़ हो रही है, एनोमली डिटेक्शन सर्विस यूज़ हो रही है, और कस्टम विजन सर्विस यूज़ हो रही है। कॉग्निटिव सर्विस क्या करता है कि हम उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको वो चेक करता है, उसको एनालाइज करता है, उस पर मॉडल अप्लाई करता है। और पता है ये एक ही स्टोरी अप्लाई हो रही है जिसके अंदर हम हमारा मेन पर्पस यही है कि हमने चीज़ें डिटेक्ट करनी है। जब तक हमें वो चीज़ें डिटेक्ट नहीं होगी हमारा मॉडल आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक वेबसाइट यूज़ कर रही हूँ, वेबसाइट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, काम करते करते अचानक से देयर इज समथिंग विच इज़ अनयूजुअल हैपनिंग, ठीक है। इस सब चीज़ों को छोड़ दो, मैं सिर्फ अपना पीसी यूज़ कर रही हूँ, पीसी के अंदर आई जस्ट रियलाइज कि मेरा पीसी ज़्यादा हैंग हो रहा है या लोड ज़्यादा ले रहा है। तो व्हाट आई विल डू, मैं जाके टास्क मैनेजर में जाके चेक करूँगी। मेरे पास एक विजुअलाइजेशन आएगी, मैं उसमें चेक करूँगी कि कहाँ पे मसला आ रहा है। मेमोरी में मसला आ रहा है, नेटवर्क में आ रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, सीपीयू पावर यूटिलाइजेशन में आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करूँगी। मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं एनोमली डिटेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये हमारा एज्योर का पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा था जिसके अंदर जो फर्स्ट ब्लॉक है जो स्टोरेज ऑफ टाइम सीरीज डाटा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक डाटा सेट हम बना रहे होते हैं जिसके अंदर हम ये एज्योर की सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें एज्योर डेटाबेस, माई एसक्यूएल की अलग एक सर्विस है, ब्लॉक स्टोरेज अलग है जिसके अंदर हम एसक्यूएल का डेटाबेस अलग बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारा डाटा चला जाता है एज्योर डेटाब्रिक्स के अंदर, ठीक है, और स्ट्रीमलाइन एनालिटिक्स के अंदर। और यहाँ पर हमारा डाटा एक कंप्यूट होने के बाद एज्योर एनोमली डिटेक्टर के पास जाता है। वो उसमें पैटर्न्स को आपस में चेक करता है। वो एक पैटर्न जो हमारा बन चुका होता है उस पैटर्न्स को आमने सामने रखता है, ठीक है। उसको टेस्ट करता है, जो टेस्टिंग डाटा होता है उसे ट्रेनिंग डाटा के साथ मैच करता है और डिटेक्ट करता है कि हमारे कहीं डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई ज़्यादा चेंज तो नहीं आ रहा। अगर चेंज आ रहा है तो वो वहीं से हमें आइडेंटिफाई कर देगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद डाटा, ठीक है। इसीलिए डाटा जब भी हम डाटा को यूटिलाइज करने लगे होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो व्हाट डू वी डू कि हम हमेशा मशीन लर्निंग मॉडल्स से पहले, मॉडल्स अप्लाई करने से पहले फीचर स्केलिंग करते हैं, डाटा क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। उसका सबसे बड़ा मेन पर्पस यही होता है ताकि आगे जाके हमारा कोई आउटलायर ना डिटेक्ट हो जाए, हमारे पैटर्न्स ना चेंज हो जाए। मशीन लर्निंग में मेन पर्पस होता है एक मॉडल क्रिएट करना, एक पैटर्न क्रिएट करना, ताकि उस पैटर्न को फॉर्म, जब वो पैटर्न फॉर्म हो जाते फिर इसमें जितना मर्जी डाटा डाल दो, जितना मर्जी डाटा आ जाए, वो पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होता और उससे हमारे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद फिर डाटा आगे जाता है और फिर हम उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, उससे हम वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और अगर हम डाटा विजुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम पावर बीआई एप्लीकेशन भी यूज़ करके अपने डाटा विजुअलाइजेशन को एक्यूरेट बना सकते हैं, ठीक है। सो अब नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फीचर्स ऑफ एनोमली डिटेक्टर, जो कि है कि अच्छा, एक तो सबसे बड़ा फीचर है कि भाई एनोमली डिटेक्ट हो जाती है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। उसके बाद है ईजी इंटीग्रेशन, मतलब आपको कोई और स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़े कि आप फलां करें फलां करें फलां करें। ईजिली आपने सिर्फ डाटा को उसके साथ कनेक्ट करना है, वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि भाई इसमें एनोमली है, इसमें नहीं है, दिस डाटा इज गुड टू गो, दिस डाटा इज नॉट गुड टू गो, ठीक है। उसके बाद टाइम सीरीज सपोर्ट, द सर्विस इज specifically designed to handle time series data which involves data point recorded over time. अब टाइम सीरीज को ये एक ओके उसके अलावा हम बात करते हैं कि बैच एंड स्ट्रीमिंग डाटा सपोर्ट। The service
supports both batch and streaming data scenarios. और उसके बाद customizable sensitivity, जिसके अंदर हम अपनी anomaly को भी उसको मतलब एक तरीके से customize कर सकते हैं, ठीक है। what we can do is देखो अभी मैं बता रही थी कि बिल्कुल static नहीं हो जाना, ये ना हो कि 0.001% भी चेंज आ रहा हो तो उसके अंदर हम कहें कि भाई ये एक anomaly है। नो, what we have to do is कि हम उसको scalable कर देंगे, हम उसकी sensitivity decrease और increase कर देंगे, लेकिन still it depends। अब for instance अब अगर हम किसी कैंसर पेशेंट का डाटा एनालाइज करें, ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा कि कैंसर पेशेंट की जो डाटा है उसको हमने बहुत सेंसिटिव वे में एनालाइज करना है। हम उस पर कॉम्प्रोमाइज ही कर सकते हैं, हम उस पर ये नहीं कह सकते कि भाई अच्छा ठीक है, अगर हमारे डाटा के अंदर कोई बहुत मेजर डिफरेंस भी आ रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। उसको बल्कि हमने इस तरह से करना है कि हमारा 0.001% भी जो अगर चेंज आ रहा है ना तो इट मैटर्स अ लॉट। हम इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो बेसिकली ये एक रेफरेंस लिंक है डेमो के लिए। अब एक चीज हो सकती थी कि मैं यहाँ पे आप लोगों को डेमो करके दिखा देती, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे मेजर इश्यूज ये आ जाते कि मैं डेमो करती रहती और इसका फायदा ना होता, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया एक वीडियो का जिसको आप फॉलो करके डेमो परफॉर्म कर सकते हो। लिंक आर्यन आप यहाँ पे चैट में भी शेयर कर देना। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग इसको परफॉर्म कर लो, ठीक है। आप लोगों के पास वीकेंड तक का टाइम है। आप लोग इससे आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है उससे आप करो, एक मॉडल बनाओ, गिटहब पे शेयर करो और गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक या तो आप आर्यन के साथ शेयर कर दो या आप मेरे साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो जो बंदा भी पहले एज्योर सर्विसेज को यूटिलाइज करके, आर्यन ने आपको बता दिया एज्योर फॉर स्टूडेंट्स कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरह से काम करना है, तो जो भी बंदा पहले ये काम कर लेगा, ठीक है, और पहले नहीं क्योंकि दिस विल नॉट मेक सेंस। ओके, हम एक डेडलाइन रख लेते हैं, संडे को हम रात 12 बजे तक की डेडलाइन रख लेते हैं। आप लोगों ने वीडियो को फॉलो करना है, आप कोई भी वीडियो जो आपको अच्छी लगे आप उसको फॉलो करो, आप इम्प्लीमेंट करो और आप उसको गिटहब पे शेयर करके रिपोजिटरी का लिंक जो है आर्यन के साथ शेयर कर दो। फिर हम उसके अंदर से एनालाइज करके 1 to 2 विनर्स निकालेंगे और उन विनर्स को हम लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर देंगे, मैं खुद दूंगी, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है कि कोई भी इवेंट अटेंड करने का कोई फायदा नहीं होता जब तक आप उससे कुछ सीख के कुछ इम्प्लीमेंट ना करो, ठीक है। मैं यहाँ हैंड्स ऑन तो करा दूं लेकिन उससे आप लोगों को क्या फायदा होगा, गेटिंग, आप लोग उस सर्विस को कैसे यूटिलाइज करोगे। तो दिस इज अ लिटिल एक्टिविटी फॉर यू गाइस, आप लोग करोगे सो यू गाइस कैन विन लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स व्हिच इज ऑफ आई गेस अगर हम पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 50 to 60,000 का एक वाउचर होता है। अब इंडियन मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। सो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। Okay guys, so anyone have any question? I'm really sorry बीच में जो interruptions हुई हैं and I hope कि जो सेशन मैंने डिलीवर किया आप लोगों को क्लियर होगा। Mohammed, are you talking about Jupyter Notebook or Colab? अगर आप लोगों को बेसिक्स ऑफ एज्योर भी सीखने ना, सो जो सबसे सिंपल तरीका है, यू कैन गो ऑन माइक्रोसॉफ्ट लर्न, ठीक है। इट इज़ ओपन टू ऑल, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एम्बेसडर्स को के लिए ओपन है। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर जाओ और वहाँ पे लाइक अपना स्टेज वहाँ पे डिफाइन कर देते कि यू आर अ बिगिनर
और वहाँ पे आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी नोट्स मिलेंगे और साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे वीडियोस बना के डाली हुई हैं एंड दे आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स अ लॉट वे बेटर देन एनीवन, ठीक है, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ बनाई है एंड जिस तरह से वो लोग एक्सप्लेन करते हैं आई थिंक कोई बहुत बेसिक लेवल पे भी हो ना तो उसको बहुत इजीली चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाके आप लोग चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई लिंक्डइन, ठीक है। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है जो आप लोगों को बताऊं कि जो एज़्योर मशीन लर्निंग सर्विस है उसके अंदर आप लोगों को प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से ये भी चैट बॉक्स में क्लस्टर्स और नोड्स की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली कर देते हैं। आप सिर्फ क्या करते हो कि आप एक डाटा सेट क्रिएट करते हो, उस पर सिर्फ अप्लाई कर रहे होते हो चीज़ें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना जुपिटर नोटबुक की, कोलैब्स की, सो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें प्रॉपर एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, उस पर ट्रेनिंग मॉडल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, टेस्टिंग अलग से करनी पड़ती है, हमें अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं एज़्योर सर्विसेज की बात करूँ तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। आप सिंपली डाटा अपलोड करते हो वहाँ पे, ठीक है, डाटा स्टोरेज बनाते हो और उस डाटा स्टोरेज को आप डिवाइड कर देते हो दो पार्ट्स में, और इतने इजीली आपकी प्रिडिक्शंस होकर आ जाती हैं, इतनी इजीली आपके क्लस्टर्स बन जाते हैं कि आपको उसके ऊपर अलग से मॉडल्स अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी मोर क्वेश्चंस तो आप लोग मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वरना आप आर्यन को क्यूरीज बता देना तो आई विल गेट इनटू द स्टेप, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सेशंस। Neha, could you also answer Mohammed's question? He has posted, and I think he has some doubts about the demo link. ओके, सो बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने ओपन करना है कि अब ये मैं वैसे आप लोगों पे छोड़ रही थी कि जिस तरह से आप लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो ये है कि आप लोगों ने मॉडल फुल आप लोगों ने नहीं करना कि यार ये हमने मॉडल डिप्लॉय कर दिया, फुल डिप्लॉयमेंट चीज़ों की नहीं करनी, ठीक है। व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आपने एक डाटा सेट लेना है, उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करना है, ठीक है। और उस ट्रेनिंग और टेस्टिंग के ऊपर आप एक मशीन लर्निंग मॉडल लगाओगे ट्रेनिंग वाले डाटा पे, ठीक है। और फिर टेस्टिंग वाले डाटा के थ्रू आपने टेस्ट करना है वो मॉडल उस पर अप्लाई करके, और फिर उन दोनों को कंपेयर करना है, और कंपेयर करके आपने चेक करना है कि एनॉमली आ रही है या नहीं आ रही। अगर एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है, वो सिमिलर हो रहा है, तो इसका मतलब एनॉमली नहीं। अगर पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो रहा और उन दोनों के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब एनॉमली है, ठीक है। और आपने ये चेक करना है कि वो बिल्कुल स्टैटिक तो नहीं जा रही। अगर वो बहुत स्टैटिक जा रही है तो उसको चेक करना है अपने डाटा के लिहाज से, ठीक है, कि कितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने फुल मॉडल डिप्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाना, सिर्फ एनॉमली डिटेक्ट करने के लिए तक रखना है कि अच्छा ठीक है एनॉमली है या नहीं है, ठीक है। आर्यन, इज इट क्लियर? आप कोई भी डाटा सेट ले सकते हो, कोई भी डाटा सेट ले सकते हो। Yeah, I think it's clear for them. Okay, so I think it's the end of the session. Should I say goodbye now? Yeah, thank you so much for joining, Neha. It was a great session. It was great having a session here. I hope everyone enjoyed. Okay, thank you. Take care. Bye bye. Yeah, Mohammed, we can share the slides later on the WhatsApp group. So make sure to join in case you haven't. I will provide you all the link. So we will be sharing the slides and also the session recordings on the WhatsApp group itself. So like make sure to join so that you can follow along with the other communication. Now you can all have a bit of a break for 5-10 minutes. Then we'll be starting the next session at 3 p.m.
which will be in about 20 minutes. The next session will be on integrated AI in your project with cognitive services, and it will be taken by Burumi Pascal. He's a gold ambassador, so get ready by then so that you can have maximum learning at that point of time. And if you have not signed up for Azure so for student programs, so till then you can also do that so that you can try and follow along with him while he shows a demo as well.